Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome you all to the online session of Gurukul Academy. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQ based upon your lecture cadre, master cadre and any MSc entrance exam you are preparing for. So let's get started with the today's session. So in today's session, our first MCQ will be the energy dependence of the density of state for a two-dimensional non-relativistic electron gas is given by G is equal to C e raised to power n. The value of n will be. आपको बताना है क्या होगी the value of n. आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है what would be the value of n for the given energy. हाँ जी, तो क्या लगता है what would be the value of n for the given energy? Anyone who wants to try the question? So what you have given the energy dependence of the density of gas, and GE, the density function is given to you, and G is C raised to power n. What would be the value of n? You need to tell me that what would be the value of n. Yes. So what do you think? How should we attempt the question? So you should know that GE for a 2D system, आपको पता है कि 2D सिस्टम के लिए your GEDE would be equal to A h cut square A upon h cut square pi 2m E plus DE raised to power 3 by 2 minus 2m E raised to power, sorry, it's 2 by 2 because it is given 2D, and that would be equal to, after solving, A upon h cut square, what will come? 2me DE upon E. After solving this expression, you will get A upon h cut square 2m pi DE. यहाँ पर पाई भी है बाहर, तो आपको क्या मिल गया? A अपॉन क्या मिल गया आपको एक्सप्रेशन मिला है GEDE would be equal to A upon h cut का स्क्वायर 2m pi DE. DE दोनों तरफ से कैंसल. GE क्या मिल गया? A upon h cut का स्क्वायर 2m pi. ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन. अब इसमें क्या मुझे कोई E की डिपेंडेंस दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही. तो यहाँ पर E की पावर कितनी होगी आपकी? 0. तो n आपका कितना होगा इस एक्सप्रेशन में? 0. n आपका कितना होगा इस एक्सप्रेशन में? 0 हो जाएगा. क्लियर है सभी को? कैसे किया दोबारा देखो. 2D सिस्टम के लिए your GEDE will be given as A upon h cut square pi 2m E plus D raised to power n by 2. What is n here? What is the dimension? That is 2D. So 2 by 2 minus 2me. After solving this, you will get this, and you will see that there is no dependence on E. It means the n value should be 0 here. Now let's move towards the next question. Yes, for a black body radiation, ठीक है, in a cavity, photons are created and annihilated freely as a result of emission and absorption by the walls of cavity. Yes, this is because photons obey Pauli exclusion principle. Chemical potential of photon is 0. Photon are spin dependent particle and the entropy of photon is very large. What they are asking in question? Let us study what they are asking in a question. They are saying that for a black body radiation, what are black body radiation? You very well know, है ना? From a black body radiation in a cavity, photons are emitted, created, annihilated freely. And what is the reason behind this? Why the photons are created and annihilated freely as a result of emission and the absorption by the walls of cavity? Why this happens? You should know that first of all that the photons are the bosons. What are photons? Photons are the bosons. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आप उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस सेंस में पूछा गया है. They are saying that for a black body radiation, the photons are created and annihilated freely from the absorption by the cavity walls, right?
Now we know that in a black body radiation, there is only quantized energy of photon are emitted. That we know. Now you should remember the important point here that the photons, the quanta of energy, carrying the energy as the integral multiple of h nu, they carry the energy in the quantized form, but the photon has rest mass 0, and the most important point that you should remember that photon has the chemical potential 0, and that's why they can be created, annihilated freely, and from the absorption and emission by the walls of the cavity. So the chemical potential of photon is 0. The correct answer would be B. That is, correct answer would be B. Photons massless होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है. Photons are just energy. Okay, the quantized energy, the quanta of energy is photon, which carry the energy nh nu. ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को? चलो, क्वेश्चन क्लियर है तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं. Which one of the following does not represent an exclusive OR operation for the inputs? Exclusive OR, XOR operation. How can you write the XOR operation? It is A bar B plus B plus A B bar. This is the XOR operation. सबसे पहले पता होगा कि XOR operation होता क्या है, तभी तो फाइंड कर पाओगे ना, वरना कैसे फाइंड कर पाओगे. ठीक है जी. तो XOR ऑपरेशन क्या है? A बार B प्लस A B बार. इसको सॉल्व करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो. देखो किसका आंसर ये मिल रहा है और जिसका नहीं मिल रहा वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट पूछा है. क्या पूछा है यहाँ पे? डज नॉट पूछा है. हाँ जी, बता दो मुझे जल्दी से सॉल्व करके. इतना तो आप लोग कर ही सकते हो. सॉल्व करना तो आई थिंक सभी को आता है, तो करिए जल्दी से सॉल्व और मुझे बताइए आंसर क्या होगा. करो. डी होगा आंसर. वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, क्योंकि इसको आपको जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है ए बी विल गिव यू ए बी प्लस बी ए, तो ये तो XOR नहीं है. बहुत अच्छे, वेरी गुड. जैसे अब इसको किया, यहाँ से क्या मिल रहा है? ए बार प्लस बी ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी बी बार, है ना? ये मिल रहा है ना, यही मिल रहा है. ठीक है, हाँ. तो ए बार 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा ये, तो XOR बन रहा है. ऐसे ये भी XOR बन रहा है, ऐसे ये भी XOR बन रहा है, तो बन कौन सा नहीं रहा? डी. वेरी गुड रमनप्रीत को, डी इज द करेक्ट आंसर. अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है जल्दी से शेयर कर दिया करो. ठीक है, आप इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो कि अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं, हमें सेशन को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, आप इधर इतना भी कर दे तो डेट इज वेरी हेल्पफुल. आपसे कौन सा यहाँ पे कोई हम फीस ले रहे हैं. ठीक है, वी आर पुटिंग अवर एफर्ट्स फॉर यू गाइस, ताकि आपका पेपर अच्छा हो, आपका पेपर क्रैक हो. रोज लगातार नए नए MCQs लेके आ रही हूँ, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेके आ रही हूँ. तो आई होप कि आप इतना सा कर सकते हैं कि आप सेशन को शेयर कर सकते हैं, आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दे सकते हैं, है ना? तो इतना ही बहुत होता है अगर आप इतना भी कर देते हैं तो. So that would be very helpful and that will boost my confidence also. Okay, इतना ही होता है. ठीक है, तो ये आप करा करो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो. ठीक है, we are here to help you. So now let's move to the next question. What is the value of t square delta t minus 5 dt? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत बच्चे गलतियां करके आते हैं. सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आपको क्वेश्चन में दिया है 0 to 2 t square delta t minus 5 dt, है ना? इसको आपको सॉल्व करने को दिया है. क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में आपको बात की गई है डेल्टा फंक्शन की. डेल्टा फंक्शन क्या होता है भाई? डेल्टा फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पीक देता है, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0. Right, delta ij will give you the value 1 when I is equal to j. Otherwise, it gives us the value of j when I is not equal to j. Now, in this question, we very well know that t is equal to 5. We have to put t is equal to 5. But here, we can see that the 5 is not in the limit of 0 to 2. 5 is not lying in the limit 0 to 2. So we can't put it in the given integral. So the answer would be 0. What would be the answer of this integral? The answer would be 0, because delta t minus 5 means
that d is equal to 5, but this is not included in our given limits. This is not included in our given limits. That's why the answer would be 0. अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता t minus 1 तो हम 1 को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 5 तो इंक्लूडेड ही नहीं है हमारी गिवन लिमिट में, तो हम इसको पुट नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा 0. आंसर आपका क्या आएगा 0. ठीक है जी, क्लियर है जी सबको. चले अगले क्वेश्चन पर. चलो, given the magnetic flux through the closed loop, this is phi. आपको magnetic flux दिया गया है closed loop से, that is P2R आपको phi दिया गया है. P2R आपको phi 1 दिया गया है. आपको निकालनी है वैल्यू अलोंग द PSR. आपको निकालनी है PQR के अलोंग आपको दिया गया है phi 1 और आपको वैल्यू निकालनी है PSR के अलोंग. तो अगर आप दोनों इंटीग्रल को प्लस करते हो, P से R प्लस R से P, द टोटल इंटीग्रल गिविंग अस द वैल्यू नंबर 5. हाँ, द टोटल इंटीग्रल इज गिविंग अस द वैल्यू 5. दैट इज, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ A डॉट dl फ्रॉम P टू R प्लस A dot dl from R to P, total integral is giving us the value 5. Now phi 1 is giving that P to R वाला कितना है phi 1. This is the phi 1. This is the phi 1. तो आपके पास दूसरा इंटीग्रल कितना आ जाएगा phi 1 minus 5. Clear? Very easy question. Phi 1 minus 5 will be the correct answer. Now let's move to the sixth question. Very important question. The dispersion relation for photons in a dimensional Bravais lattice with the lattice spacing A consisting of ions of masses m is given by omega k is equal to under root c by m1 minus cos ka. Omega is the frequency of oscillation, k is the wave vector, c be the spring constant, then the ratio of the group velocity to the phase velocity at first Brillouin zone. First Brillouin zone में आपको पूछा है कि what would be the ratio of ग्रुप वेलोसिटी टू द फेज वेलोसिटी. पता है ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, सभी को पता होगा. ग्रुप वेलोसिटी इज द ग्रुप ऑफ वेव की वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. आपको ओमेगा के दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर के फाइंड आउट कीजिए. क्या होगा ओमेगा स्क्वायर के, अंडर रूट हट जाएगा, है ना. ओमेगा स्क्वायर के क्या होगा भाई बताओ, अंडर रूट हट जाएगा, 2c बाय m 1 माइनस कोस के ए आ जाएगा. अच्छा जी, 1 माइनस कोस के ए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, है ना, यही होता है. ठीक है जी, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर के की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 2c बाय m, 1 माइनस कोस टू थीटा इज साइन 2 थीटा, है ना. 1 माइनस कोस टू थीटा इज 1 माइनस कॉस के थीटा इज साइन थीटा बाय साइन के बाय 2 आ जाएगा, है ना. 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अच्छा एक 2 लगेगा, यहाँ पे 4 आएगा. कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है, अब मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होगा आपका, जब आपका ओमेगा के कितना होगा 4c बाय m. मैक्सिमम कब होगा आपका, जब आपका ये क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो आपका मैक्सिमम होगा ओमेगा के दैट इज 4c बाय m, है ना. जब आपका साइन स्क्वायर ये जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आपका मतलब साइन स्क्वायर, देखो पहले दिया क्या था, ये आपको डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है, ये आपको डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है. ओमेगा स्क्वायर के आ गया मेरा 1 माइनस कोस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना. तो ये आ गया मेरा 4c बाय m साइन स्क्वायर के ए बाय 2, इतना आ गया. अब ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी 4c बाय m, मतलब साइन स्क्वायर के ए बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना, 1 होगी. अब 1 कब होगी, जब ये k पाई बाय 2, जब ये k पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के, है ना, पाई बाय 2 के इक्वल होगा. साइन स्क्वायर तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा. क्लियर, जब आपका के ए बाय 2 पाई बाय 2 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से k क्या होता है, यहाँ से k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू a बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2. पाई कट गया, a कट गया. ठीक है,
लैम्डा आ गया 2a, लैम्डा कितना आ गया 2a, मैंने लैम्डा निकाल लिया, कितना आ गया मेरा 2a आ गया, ठीक है। तो अगर मेरा लैम्डा 2a आ गया तो मेरा vp फेज वेलोसिटी कितनी आएगी? फेज वेलोसिटी क्या होती है, याद है सबको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी? 2vs/a sin ka/2। आपको आर्टिकल याद होना चाहिए ना। फेज वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? 2vs अपॉन, फेज वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? 2vs अपॉन ka sin ka/2। दिस इज योर फेज वेलोसिटी, इतना आपको पता है। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी, दिस शुड बी द मैक्सिमम वन, और वैसे भी आपको पता है इट कम्स आउट टू बी 2vs अपॉन पाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज vg? vg इज इक्वल टू vs cos pi/2। अब cos pi/2 क्या होता है? 0, तो vg तो 0 आ गया, vg कितना आ गया? 0। हमसे क्या पूछी थी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रुप वेलोसिटी टू फेज वेलोसिटी। अगर vg 0 है तो कोई भी हो vg अपॉन vp की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। देखो रैप अप करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट्स लेके चल रहा है आपके प्रीवियस आर्टिकल से, जो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। दिया हुआ था, मैंने बोला कि अगर मुझे इसको मैक्सिमम की बात करनी है, व्हेन आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री के बारे में जब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी? जब ये साइन, ये वाला फैक्टर मेरा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है 1। ये अटेन 1 कब करेगा? जब मेरा k/2 pi/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरा लैम्डा की वैल्यू निकाल ली मैंने 2a। जब मैंने लैम्डा की वैल्यू 2a निकाल ली, तो मैंने vp और vg का एक्सप्रेशन मुझे याद होना चाहिए मेरे आर्टिकल से। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए मेरे आर्टिकल से। मैंने जब वैल्यू पुट की तो मेरा vg आ गया 0। अगर मेरा vg 0 आ गया तो vg अपॉन vp की रेशियो भी कितनी आ गई? 0। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि आपको रिजल्ट याद होना चाहिए था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लियर है जी सबको? ठीक है। चलो हाँ, अब देखते हैं। अच्छा, ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है ओप एम्प का। यहाँ पे क्या है? C, यहाँ पे क्या है? R। तो ये क्या है? इट इज अ डिफरेंशिएटर। इट इज अ डिफरेंशिएटर। दिस इज द सर्किट ऑफ डिफरेंशिएटर। अब मुझे बताओ, ट्रायंगुलर वेव है तो इसको डिफरेंशिएट होके क्या बनेगी? ट्रायंगुलर वेव है, डिफरेंशिएट होके व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? So this is the circuit of a differentiator, and you very well know for a differentiator the output is given by minus RF. Output is given by minus RF, ठीक है, minus RF C1 D upon dt. This is the output of a differentiator. Now आपको पता है यहाँ पे हमारा differentiator triangular wave है. What would be the correct answer? Yeah, very good. This would be the correct answer. ठीक है, this would be the output of the given input. So the option number C is the correct one. Clear है सभी को? चलो, find the equation of the plane which is tangent to the surface. आपको एक surface दिया गया है, आपको equation निकालनी है plane की which is tangent to this surface. Tangent to this surface. हाँ जी बताओ, tangent to this surface. देखो करना कैसे है? सबसे पहले आपको पता है, मैं इसके नॉर्मल, अगर मुझे नॉर्मल निकालना होता है देन आई टेक द ग्रेडियंट। मैं गिवन इक्वेशन का ग्रेडियंट लेती हूँ, इस गिवन इक्वेशन का ग्रेडियंट लेती हूँ, क्या मिलेगा मुझे बोलो जल्दी? 2x i कैप प्लस 2i j कैप माइनस 2z k कैप, है ना? ये मिलेगा मुझे इसका ग्रेडियंट, एंड दिस इज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। यू वेरी वेल नो ग्रेडियंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। अगर मैं पॉइंट पुट कर दूं, क्या पॉइंट दिया हुआ है? 1 2 -1 आपको पॉइंट दिया हुआ है। 1 2 -1 अगर मैं पॉइंट पुट कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? पुट करो जल्दी। ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना आएगा? 2i कैप 2j कैप माइनस 2z, सॉरी z नहीं आएगा, k कैप, है ना? दिस वुड बी द ग्रेडियंट. Now the vector to the given point, r naught, subtracting from the some normal vector, journal point is the vector of the desired plane. हम desired plane का vector कैसे निकालेंगे? ठीक है, first of all do r minus r naught. ठीक है, what would be r minus r naught? R is the your journal vector and r naught is your
the vector that we have find, that is I cap plus 2j cap, सॉरी यहाँ पर 4 आना था ना, बिकॉज दिस पॉइंट इज 2, सो दिस शुड बी 4 हियर, थोड़ा ध्यान रखा करो, दिस शुड बी 4 हियर, ठीक है। तो अब मेरा r नोट क्या है, दिस वन इज माई r नोट, दिस वन इज माई r नोट, द वेक्टर टू द गिवन पॉइंट r नोट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अ जर्नल वेक्टर विल गिव मी द डिजायर्ड प्लेन, ठीक है। सो व्हाट विल आई गेट, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ मैम, ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। अगर मैं 2 हटा दूं, ठीक है, 2 हटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x माइनस आई, x माइनस 1 आई कैप प्लस y माइनस 2j कैप प्लस z प्लस 2 k कैप प्लस z प्लस 2 k कैप. This will be the vector that I will get, z plus 1 k cap. This will be the vector that I will get. ठीक है, अब मैंने इनका क्या करना है, now I want to find the tangent plane. So what will I do? I will do del phi dot r minus r naught. What I will do, del phi into r minus r naught. Del phi कितना है, del phi ये है आपके पास, this is your del phi, ठीक है, this is your del phi and this is your r minus r naught. इसको मार्क नहीं करनी, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। So del phi dot r minus r naught will give me the vector of the tangent plane. So what you will do, you will multiply both, इन दोनों को multiply करो, 2x minus 1 plus 2x minus 1 plus 4y minus 2 plus sorry minus 2 माइनस 2 z प्लस 1, ये आपका बनेगा टेंजेंट प्लेन वाला वेक्टर जो उन्होंने पूछा था। सॉल्व करके कितना आएगा, x प्लस, करो सॉल्व, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस z एंड कोफिशिएंट माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो B आपका है करेक्ट आंसर, x प्लस 2y प्लस z माइनस 4. क्या किया, they ask us to find the equation of the plane which is the tangent to the surface. First of all, find the gradient of this. You find the gradient and then find the r minus r naught and then take the dot product. You will get the desired answer. ठीक है, clear है. Now let's move to the next question. The first line in the rotation spectrum of CO is 3.842. First line आपको दी गई है. First line occurs at 2b. You very well know in the rotational spectrum. In the rotational spectrum, first line occurs at 2b. ठीक है, first line occurred at 2b and 2b that means किसके इक्वल आ गया, 2b आ गया आपका गिवन 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स के. तो b निकाल दो इधर से, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.921, है ना, डिवाइड करके. अब आपको पता है अच्छे से व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 8 पाई, b इज इक्वल टू सॉरी h अपॉन, b इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर ic. b इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर ic. दिस इज b. So what will be the I की वैल्यू कैसे निकलेगी, I would be equal to h cut square upon 8 pi square bc. This will be the, तो यहाँ से आप I निकाल सकते हो, h cut square आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब कुछ तो पता है. So you can find I from here. You can find I from here. I निकालो. देखो सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम की. फर्स्ट लाइन अक्कर्स एट दिस, आपको पता है फर्स्ट लाइन रोटेशनल स्पेक्ट्रम में अक्कर्स एट 2b. ये आपको पता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आपको पता है फर्स्ट लाइन अक्कर एट 2b. तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगी. b की वैल्यू आ गई मेरी इतनी. अब आपको इतना भी याद रखना है, b इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर ic होता है. I होता है आपका बच्चे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. I क्या होता है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. I होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, I को भरो म्यू आर, अच्छा I तो हमने निकालना है, B हमें पता है, I की वैल्यू निकाल लो.
अब जब उन्होंने निकालने को क्या बोला, आपको बोला रिड्यूस मास, तो कोई मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों को पता है कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आई इज इक्वल टू म्यू आर का स्क्वायर, आर भी आपको दिया गया है, ये देखो ये दिया हुआ है ना, आर दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ होता है, आर इज व्हाट, आर इज योर बॉन्ड लेंथ, आर क्या होता है, आर आपका होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो आर भी दिया हुआ है, तो ये भी दिया, ये हमने निकाल लिया, तो म्यू आप निकाल नहीं सकते, इजी है ना अब तो म्यू निकालना, ठीक है। बोलो क्वेश्चन समझ आया। रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिया हुआ था, आर निकालना था, एटॉमिक से क्वेश्चन है, इजी सा है, हो गया सबको, क्लियर है सबको, ठीक है जी। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर, अगर क्लियर है तो। Photoelectrons are liberated by the UV light of wavelength 3000 angstrom from a metallic surface from which the threshold is 4000. थ्रेशोल्ड कितनी है 4000, और लाइट कौन सी फ्रीक्वेंसी ने सॉरी वेवलेंथ की आ रही है 3000। आपको पता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए आने वाली लाइट की वेवलेंथ से। कैलकुलेट करो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अच्छा जी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आइंस्टाइन इक्वेशन सबको पता ही होगी। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आने वाली रेडिएशन की एनर्जी टूटती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं। आई कैन राइट दिस एज h by lambda, hc by lambda, hc by lambda नोट प्लस kinetic energy that is the half mv square, half mv square। पूछा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट होंगे विद मैक्सिमम kinetic energy, ठीक है। अब कोई बात नहीं, सबसे पहले हाफ mv स्क्वायर निकाल लो। हाफ mv स्क्वायर क्या होगा, hc कॉमन 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट। लैम्डा कितना गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा नोट कितना गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। इतना गिवन था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो आपके पास कितना ही आगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पुट करो लैम्डा और लैम्डा नोट की वैल्यू, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। कर सकते हो आप इजीली, इजी कैलकुलेशन है। अच्छा जी अब बोला क्या है, कहते डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो आपको ध्यान होगा डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e, यही होता है, याद है सबको, इतना तो याद है, इतनी क्वांटम तो आती है सबको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e। तो कोई बात नहीं, e की वैल्यू हमने निकाल ली है, h हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, 2 तो कांस्टेंट है, वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन रह गया पीछे। An electron is confined to the box of length this, what will be the uncertainty in its velocity? कुछ मुश्किल नहीं है, फिर से अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में पूछी है, आपको तो पता ही है, एक रिलेशन होता है आपके पास हाइजेनबर्ग वाला डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, होता है ना ये रिलेशन, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब ये रिलेशन जो होता है तो डेल्टा पी वुड बी इक्वल टू एम डेल्टा वी, ये भी आपको पता है, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा बोलो, डेल्टा वी विल कम आउट टू बी डेल्टा पी ओवर एम, और डेल्टा पी क्या आएगा एच कट अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एम, कुछ मुश्किल नहीं है। एम की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 2 पाई इंटू 10⁻, सॉरी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10, एच की वैल्यू क्या है 1.05 इंटू 10⁻⁻34। सारी वैल्यूज पता लग गई, अनसर्टिनिटी कितनी आ रही है, हाँ जी सॉल्व करो जल्दी, बताओ अनसर्टिनिटी कितनी आएगी, जल्दी से सॉल्व करें एंड अनसर्टिनिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है हो जाएगा ना, इजी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 1.16 इंटू 10⁻6 आ रहा है, ओके। नाउ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज दिस, आपसे पूछा है कि आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालनी है मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये आपको पता है, वैसे भी आप इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वी वेरी वेल नो दैट द proton is 1867 times higher than that of electron. This was an easy question. The time of an unstable particle at rest is this. टाइम मुझे लगता है गलत दिया हुआ है. टाइम ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल एट रेस्ट शुड बी, ये 10⁻⁻6 होना चाहिए, यहाँ पे 10 नहीं है, इट शुड बी 10⁻⁻6, है ना. अगर उस इंस्टेंट ऑफ क्रिएशन पे इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.9 c, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिफोर इट कवर डिके. डिके करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. देखो कुछ मुश्किल नहीं है, आपको टाइम दिया हुआ है रेस्ट पे, मतलब आपको टी नोट दिया हुआ है. टी इज इक्वल टू टी नोट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है. हाँ जी, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है. टी नोट दिया हुआ है 10⁻⁻6, ठीक है. 1 माइनस वी कितना दिया हुआ है 0.9 सी, 0.9 का स्क्वायर, ठीक है जी. ये आ गया 10⁻⁻6, 0.81 0.9 और ये आ गया आपका 0.3. कितना आ गया, कितना आ गया 10⁻⁻6 अपॉन 0.3. तो आपका टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 2.29 इंटू 2.29 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, ठीक है. डिस्टेंस पूछा है. अरे डिस्टेंस क्या होता है, एल इज इक्वल टू टी इंटू स्पीड, तो बस डिस्टेंस निकाल लो. इजी सा क्वेश्चन है. चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं. द पोटेंशियल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक आपको पोटेंशियल दी गई है. बच्चे कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, तो आप जरूर क्रॉस चेक किया करो. फॉर्मूला जो बता रही हूँ वो सही है, उसी फॉर्मूला से होगा. अगर कभी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाती है, आप जरूर क्रॉस चेक किया करो, ठीक है. चलो पोटेंशियल दी गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर सकती हूँ. आई डोंट हैव दैट कैलकुलेटर आल्सो विद मी, सो बस मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ. कैलकुलेशन यू कैन क्रॉस चेक योरसेल्फ, ठीक है. नाउ वी आर इज गिवन एज माइनस ए की पावर आर 6 एंड प्लस बी अपॉन आर 12. द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम. आपसे क्या पूछा, पोटेंशियल बताओ इक्विलिब्रियम, तो कुछ मुश्किल नहीं है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें पता ही है, वी हैव टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू 0. take the first derivative of the given potential, put it equal to 0, find out the value of r. First aim is to put the curl v by curl r is equal to 0 and find the value of r. What is the value of r we are getting? कर लिया सॉल्व सभी ने. 2b upon a 1/6. This is the value of r that we are getting. हो गया इतना. अब जब मुझे वैल्यू मिल गई r की, कितनी मिल गई 2b upon a raised to power 1/6. तो उसको इक्विलिब्रियम सेपरेशन में पुट कर देते हैं. माइनस a की पावर 2b अपॉन a, 6 से 6 कट गया, प्लस b अपॉन 2b अपॉन a का होल स्क्वायर. जल्दी से सॉल्व कर दो और बता दो व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग. यस फास्ट. minus a square upon 4b. Very good. Minus a square upon 4b is the correct answer. Now let's move to the next question. Electric field and the magnetic field corresponding to a scalar potential and vector potential. Okay. Now देखो electric field is equal to minus del phi minus curl a by curl t. This is the expression for the magnetic field, and what is so this is the expression for the electric field, and magnetic field is del cross A. What is the value of magnetic field? That is del cross A. This is the expression for your electric field and the magnetic field. E is equal to minus del phi minus curl A by curl T. So phi is given as 0. Phi क्या given है 0. And what is the A given? So ये वाली term तो correspond कर रही है 0 को. Now curl A by curl T. A कितना है iota I z, so it will be, what would be the value? Minus iota z. This will be the value of electric field. Now to find this, take the cross product ijk. What is the del? Del is curl by curl x, curl by curl y, curl by curl z. Put the value only iz, है right? Sorry, क्या आएगा यहाँ पे? a की वैल्यू क्या दी गई है, हाँ tz. तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा tz, यहाँ पे आएगा 0 0, है ना. सो सॉल्व करो तो यू विल गेट jt. तो b आ गया jt, b आ गया jt. e क्या आ रहा है माइनस, ये आएगा माइनस आयोटा z कैप, है ना. तो आपके e का एक्सप्रेशन भी आ गया, b का एक्सप्रेशन भी आ गया. क्लियर है.
याद क्या रखना है, इज माइनस डेल फाइव माइनस कर्ल ए बाय कर्ल टी होता है, बी डेल क्रॉस ए होता है। मुश्किल क्या था, इजी सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। The wave function of a particle is given by this, okay, where phi1 and phi2 are the normalized eigenfunction. आपको बताना है कि what would be the expectation value of the Hamiltonian. What would be the expectation value of the Hamiltonian? So first of all, जब भी हमें wave function दिया होता है, what we do the normalization. What we do the normalization of a wave function minus infinity to infinity. Del square psi d cube psi is equal to 1. So आपको क्या मिलेगा, यहाँ से a निकालो जल्दी से, a की वैल्यू कितनी आ रही है, √2/3. Easily you can solve the normalization. Everyone know how to do the normalization. By solving the integral you will get a is equal to √3, 2/3. Now what would be the psi1 then? psi1 आप क्या बनेगा आपका sin बोलो, अंडर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बनेगा 1/√3 psi0 प्लस यहाँ क्या बनेगा आयोटा इंटू √2/3 psi1. सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना है, इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं, दैट विल बी साई एच साई। आपको पता है एच जब भी एक्ट करता है साई पे तो ये आपको एनर्जी आइगन वैल्यू देता है उस फंक्शन की। दिस इज द कंसेप्ट। सो ओके, लेट राइट द वेव फंक्शन। अब साई नोट की वैल्यू आएगी ई नोट और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होगा 1/√2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी साई वन की E1, मल्टीप्लाई में क्या होगा, सॉरी ये वाला हमने इसको करना है, ध्यान करो, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग करना है, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है दैट योर एच साई विल गिव यू ई साई। सो नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस वेव फंक्शन, सो 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू साई जीरो की एक्सपेक्टेशन वैल्यू विल बी E0 प्लस √3 √3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू साई वन विल गिव यू E1। क्यों, देखो कई बच्चों को इसमें कंसेप्ट नहीं पता लगा होगा, क्यों नहीं पता लगा, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हेन एच साई जीरो पे एक्ट करता है तो इट गिव्स यू E0 साई जीरो। दूसरा मैंने इसमें कंसेप्ट यूज किया, साई जीरो और साई जीरो आपस में 1 देते हैं और साई जीरो और साई 1 आपस में 0 देते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मैलिटी। दूसरा, अगर ये आयोटा है तो ये वाली चीज क्या होगी, माइनस आयोटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट पता होंगे तभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, वरना बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/3 E0 प्लस 2/3 माइनस 2/3 E1, ठीक है, माइनस 2/3 E1। तो E0 माइनस 2E/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। कई बच्चों को कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते और वो गलत कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से काम लेना है, थोड़ा ध्यान से काम करना है। क्लियर है सबको, चलें अगले क्वेश्चन पर। हो गया क्लियर, डाउट है पूछो, बारी बारी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बारी पूछोगे उतनी बारी बताऊंगी, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब बताओ, सिस्टम है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का, कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में मूव कर रहा है, एक के लिए होता है n kbt, एक के लिए कितना होता है n kbt, 2 डायमेंशनल के लिए कितना हो जाएगा फिर, अगर 1D के लिए n kbt है, सॉरी एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स, देखो फॉर 1 पार्टिकल देयर इज अ हाफ kbt ऑफ एनर्जी, यू वेरी वेल नो। सो फॉर n पार्टिकल्स देयर विल बी हाफ n kbt ऑफ एनर्जी, यू वेरी वेल नो। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 2D, 2D के लिए कितना होगा, 2D के लिए 2 इंटू हाफ n kbt, ये कैंसल, n kbt वुड बी योर आंसर, n kbt वुड बी योर आंसर। कितना आंसर आएगा आपका, n kbt वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, समझ आ रहे हैं सबको, किसी को डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, मुझसे पूछो, कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बच्चों की तरह जैसे आपको आता ही नहीं है, ठीक है, पूछोगे तभी बताऊंगी, पूछा करो, समझा करो, सीखा करो, ठीक है। गेट द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। कल मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द पेड कोर्स, so let's meet you tomorrow. So okay, goodbye everyone, take care and give your best.